بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نصرت حارث اور آج میں آپ کی خدمت میں کچھ خبریں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ نہ صرف پیش کرنا چاہتی ہوں بلکہ اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ کچھ یاد دہانی اگر میں کرواؤں، زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ 13 سپٹمبر 2018 کو شفقت محمود صاحب اپنے وزیر اعظم اور مختلف پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ اپنے ٹویٹس میں، اپنے خطبات میں، اپنی پریس کانفرنسز میں بہت سی باتیں کرتے رہے، جس میں سے اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ ایوان صدر سے لے کر ایوان وزیر اعظم سے لے کر جتنے گورنر ہاؤس ہیں، جتنی بڑی بڑی اراضی پہ پھیلے یہ محلات ہیں جو حکومتی پراپرٹی ہے اور جس پہ کروڑوں روپے کا سالانہ خرچہ ہوتا ہے، جس میں سے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں کہ شفقت محمود صاحب نے بتایا تھا کہ ایوان وزیر اعظم 1096 کینال کے رقبے پر محیط ہے اور اس کی سالانہ دیکھ بھال میں کوئی 47 کروڑ روپے کا خرچہ آتا ہے۔ اس طرح انہوں نے ایوان وزیر اعظم، ایوان صدر اور جتنے گورنر ہاؤس ہیں اور جتنے اس طرح کے ہمارے محل ہیں ہمارے ملک میں، ان کی اراضی بھی بتائی اور اس میں کتنا خرچہ آتا ہے سالانہ وہ بھی بتایا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا، یا پی ٹی آئی کی حکومت کا یہ موقف تھا، اور وزیر اعظم صاحب کو تو ہم نے دیکھا ہی ہے کہ جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں وہ اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں، انہوں نے اس طرح سے اس پراپرٹی کو شاید استعمال نہیں کیا، لیکن یہ جتنے دعوے اور وعدے تھے آج 3.5 سال ہو گئے، میرے خیال میں اب تو ذرا عوام کا یہ یا قوم کا یہ حق ہے کہ آپ سوال کریں کہ یہ جتنے ایوان تھے ان کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کسی کو لائبریری بنائیں گے؟ ابھی میں نے یہاں پر پڑھا کہ جی انہوں نے کہا تھا کہ کراچی کے گورنر ہاؤس کو عجائب گھر میں تبدیل کیا جائے گا۔ اچھا، عجائب گھر کا نقشہ تو وہ دے رہا ہے لیکن وہ ویسا عجائب گھر نہیں ہے جو ہمیں بتایا گیا۔ کسی کو کہا جاتا تھا لائبریری بنا دیں گے، کہیں کہا جاتا تھا کہ یونیورسٹی بنا دیں گے، کہیں کچھ تو کہیں کچھ۔ ہوا کیا ہے اب؟ حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، بڑی جلدی جو ہے نا وہ کال اور فیل میں تضاد کچھ ہی سالوں میں سامنے آ جاتا ہے۔ 2018 کی ہم نے بات کی، آج 2021 میں ہم کھڑے ہیں، بس کچھ ہی عرصہ رہ گیا ہے پھر الیکشن شروع ہو جائیں گے۔ اب ہوا کیا ہے؟ اب پی ٹی آئی کا گڑھ خیبر پختونخوا، وہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ جی گورنر خیبر پختونخوا جو ہیں وہ اور ان کے عملے کے خرچے میں 5 کروڑ روپے سے زائد کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہاں کتنا کام ہو رہا ہے، عوام اور قوم کی خدمت کے لیے جانیں لٹائی جا رہی ہیں، جس کے عوض میں 5 کروڑ روپے بڑھائے گئے ہیں۔ اب میں آپ کو جلدی کچھ چیزیں بتانا چاہتی ہوں، یہ ہر جگہ خبروں میں موجود ہے اور بالکل ڈاکیومنٹڈ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کا بجٹ ہے، گورنر ہاؤس کی ہم بات کر رہے ہیں، 25 کروڑ 40 لاکھ روپے تھا۔ گورنر ہاؤس کے پی کے گزشتہ سال 25 کروڑ 75 لاکھ زائد ان کا خرچہ ہوا۔ ان کا بجٹ 40 لاکھ تھا، 25 کروڑ 40 لاکھ، لیکن 25 کروڑ 75 لاکھ روپے خرچہ کیا انہوں نے، اپنی جو ان کی لمٹ تھی اس سے زیادہ۔ اس کے علاوہ گورنر ہاؤس کے خرچے وغیرہ جب تمام ملائے گئے تو جی 30 کروڑ روپے زائد کی منظوری دے دی گئی۔ اب 30 کروڑ زائد کی منظوری دے دی گئی ہے، یعنی پہلے 25 کروڑ اور واٹ ایور لاکھ تھے، اب اس کو کہہ دیا ہے راؤنڈ فگر کر لیتے ہیں، جو ہمارے عام زبان میں کہا جاتا ہے نا، اس کو 30 کروڑ پہ لے آئے ہیں۔ اب اس میں خرچہ کیا ہے؟ خرچہ یہ ہے بھائی، ٹیلی فون، بجلی، گیس 4 کروڑ روپے اس میں بڑھ گئے ہیں۔ 4 کروڑ میں وہ پورا نہیں ہو رہا، یہ یوٹیلیٹیز جتنی دی جا رہی ہیں، یہ یوٹیلیٹیز میں اور آپ تو ایویں ہی رو رہے ہیں۔ اصلی رونا تو گورنر ہاؤس والوں کو چاہیے، بیچاروں کو اتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، گیس، بجلی اور یہ ساری جو یوٹیلیٹیز ہیں ان کی مد میں جو ان کو خرچہ کرنا پڑ رہا ہے، اس میں 4 کروڑ روپے کا اضافہ ہو گیا۔ شاید اے سی زیادہ چلا رہے ہوں گے یا مہمان زیادہ آ رہے ہوں گے یا آئی ڈونٹ نو کیا کر رہے ہیں۔ اس سال گورنر ہاؤس کے بجلی کے بل کی ادائیگی کے لیے 3 کروڑ روپے سے زائد کا بجٹ منظور کیا گیا۔ پچھلے سال کے بجلی کے بل میں 2 کروڑ 62 لاکھ روپے جمع کرائے گئے تھے، اس سال آپ دیکھیے کہ کتنے زیادہ ہو گئے۔ اسی طرح گیس کے بل میں پچھلے سال 60 لاکھ روپے خرچ رکھے گئے تھے، خرچ 87 لاکھ روپے ہوئے تھے۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ گیس کے ساتھ؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ مطلب کیا، کون سا کھانا پک رہا ہے، کون سے جنریٹر چل رہے ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جو گیس پہ چل رہی ہے کہ اتنا تجاوز کر گیا۔ 60 لاکھ بھی ایک رقم ہے، 60 لاکھ سے اوپر چلا گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد بھی اس طرح کی مد میں تو آتا ہی رہا، مگر اس کے ساتھ گورنر خیبر پختونخوا کے سفری اخراجات میں پیٹرول اور ہوائی سفر پر گزشتہ سال تقریباً 60 لاکھ روپے کا خرچہ آیا، جو بجٹ سے 15 لاکھ روپے زیادہ تھا۔
45 लाख इनको दिए थे हुकूमत ने कि जी कर लें अपना सफ़र, पेट्रोल पे खर्च कर लें, मुल्क से बाहर चले जाएं, सब कर लें, मगर इन्होंने 15 लाख रुपए और तजावुज़ किया और अपना ये खर्चा किया। इस साल भी गवर्नर हाउस को तेल और हवाई जहाज़ के लिए मज़ीद 60 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। गवर्नर के अमले के सफरी अखराजात पर 90 लाख रुपए खर्च किए। इनके अलावा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुज़िश्ता साल अपनी तफरी और तहाइफ पर 1 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। तफरी और तहाइफ, ज़रा गौर से सुनिएगा आप, वो मुल्क जहाँ पर रोटी ना मिलने की वजह से लोग अपने आप को फंदे लगा रहे हैं, अपनी जानें ले रहे हैं, अपने आप को जला रहे हैं तेल डाल के, उस मुल्क में एक सूबे का जो एक आपकी ऑनररी पोजीशन है, आप गवर्नर हैं उस सूबे में, आपके तफरी और तहाइफ पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। पता नहीं कौन सी ऐसी तफरी आपने की है या कौन से ऐसे तहाइफ आपने दिए हैं। ये मदीना की रियासत है, ये वो रियासत है जिसका जिक्र खुलफाए राशिदीन किया करते थे, ये वो रियासत है कि जिसके बारे में हज़रत उमर का वो कॉल कितना, हज़रत उमर फारूक का कॉल कितना फेमस है कि जी दरियाए फुरात के किनारे एक कुत्ता भी मर गया तो उसका सवाल उमर से होगा। ये वो रियासत है, ये वो उनके पैरोकार हैं, यहाँ पर उनके हिसाब से या उनको फॉलो करते हुए ये हुकूमत बनाई गई है। ये सोचा गया है कि हम ये करेंगे, अपनी गरीब आवाम, अपनी वो आवाम, मुतवस्सित तबके की भी अगर आपको मैं बात बताऊँ, 50,000, 60,000, 70,000 जो भी उसकी सैलरी है, उस टैक्स कट जाता है फिर सैलरी मिलती है, टैक्स एट सोर्स कट जाता है। ज़्यादातर जो टैक्स पेयर है वो सैलरीड क्लास है, क्योंकि उनका टैक्स एट सोर्स कटता है, उसके बाद उनको बचे कुछ अमाउंट घर के लिए मिलता है, फिर उनको सारी अपना महीना उसमें गुजारना है, बिजली के बिल, ये वो, बच्चों की पढ़ाई, खाना पीना, जो कुछ भी है। और उस टैक्स से जमा रकम, वो मुल्क जो कर्जों में डूबता जा रहा है, वो मुल्क जिसका स्टेट बैंक भी अब क्वेश्चनेबल हो गया है कि शायद आपके कहने पर वो ना चले, वो IMF के कहने पे चले, वो मुल्क जहां पर हर चीज़ गिरवी रखी है, आज मेरी आपकी ज़िंदगियां भी इस मुल्क में गिरवी रखी हुई हैं, वहां पर आप इतना खर्चा कर रहे हैं। फिर आगे देखिए, मैं एक एक चीज़ पे जाऊं तो मुझे शर्मिंदगी होती है। गवर्नर हाउस के मुलाजमीन के अलाउंसेस के लिए आदाद शुमार के बगैर गौर कीजिएगा, लमसम 4 करोड़ रुपए रखे गए हैं कि जी ये हमारा स्टाफ है, हम जो इनके ऊपर खर्च करें उसमें कुछ बताया नहीं गया कि ये इनकी सेफ्टी के लिए, हेल्थ के लिए, खाने पीने के लिए, किस चीज़ के लिए। लमसम उनको 4 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। अभी किसकी जेब में जाएंगे ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। अच्छा जी, उसके बाद मुलाजमीन को पहले से मिलने वाले 2 दर्जन अलाउंसेस इसके अलावा हैं, जबकि गुज़िश्ता बरस गवर्नर हाउस के मुलाजमीन के यूनिफॉर्म पर तकरीबन 10 लाख रुपए का सालाना खर्चा आया, और इस साल भी मुलाजमीन के यूनिफॉर्म पर मज़ीद 11 लाख रुपए का खर्चा आया। ये कौन सा यूनिफॉर्म इंटरनेशनल बन रहा है? कोई गुची से बनवा रहे हैं, वर्साशी से बनवा रहे हैं, किससे बनवा रहे हैं? कौन सा ब्रांड है जिससे आप बना रहे हैं, जिसका डिज़ाइनर पाकिस्तान आता है और आपको ये अमले का यूनिफॉर्म डिज़ाइन करके देता है? अच्छा जी, दस्तावेज़ात में ये भी बताया गया है कि गरीब मुल्क के मुतवस्सित सूबे, गरीब मुल्क उसका भी मुतवस्सित सूबा खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, और वहाँ का गवर्नर हाउस के मुलाजमीन की तादाद कितनी होगी आपके ख्याल में? 50 होंगे, 60 होंगे, 100 होंगे, 150 होंगे? नहीं जी, 265 लोग वहाँ काम करते हैं, और उसमें से सिर्फ 22 के करीब नए माली भर्ती किए हैं। इतनी बड़ी अराजी है, इतना लश ग्रीन लॉन है, जाहिर है माली की ज़रूरत तो पड़ेगी, और 1, 2, 10 से थोड़ी काम होगा। जब वहाँ फूल खिले होंगे, जब वहाँ हरियाली होगी, जब वहाँ आपको ठंडी हवाएं और ताज़ा हवाएं मिलेंगी, उसके लिए आपको 22 माली मज़ीद की ज़रूरत है, जो कि बनता है, ज़ाहिर है मैनेज करने के लिए शायद 22 मालियों की और ज़रूरत है। इसके अलावा पहले गवर्नर हाउस में 8 माली काम करते थे, अब 22 और हैं। अच्छा, अब 30 हो गई है इनकी तादाद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ज़ाती अमले में एक आया भी शामिल है। आई डोंट नो इफ देयर इज़ अ किड इन द फैमिली। जबकि इमाम मस्जिद, मौज़न, हेड खिदमतगार, 2 खिदमतगार, 13 ड्राइवर, 17 नायब कासिद, 1 स्टीवर्ड, 14 बैरे, 4 धोबी, 1 ब्रासमैन, वॉशरमैन और 2 बावर्ची, 3 मालिशी भी शामिल हैं, वो जो मालिश करते हैं, क्योंकि गवर्नर हाउस में इतना काम होता है और गवर्नर साहब यकीनन बहुत थक जाते हैं और निढाल हो जाते हैं, क्योंकि कौम की खिदमत जिस तरह वो कर रहे हैं वो आपके और मेरे सामने है। और ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के बल्कि जितने भी हमारे सूबों के गवर्नर हैं, आप देखिए हमारी एक कॉल पे वो हाजिर होते हैं और हमारे लिए कितने एक्सेसिबल हैं और हमारे दुखों का मद्दावा करते हैं। यहाँ बिल्डिंगें गिर जाती हैं और गवर्नर हाउस जो है उस पर तकरीर करते हैं या उसके बारे में कुछ कहते हैं। तो जब गवर्नर
साहब इतना काम करेंगे पाकिस्तान में तो जाहिर है वो थक जाएंगे और उनको मालिश करवाने के लिए या मालशियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो 3 अदद वो भी मौजूद हैं। खिदमत गुजार अलग हैं, 12-14 जो भी हैं, बावर्ची अलग हैं, ये अलग है वो अलग है, और साथ में आराम और आसाइश के लिए ये भी लोग मौजूद हैं। यकीन कीजिए कि शायद मैं इस शो में मौजूद हूँ तो मुझे अपने जज्बात पे कंट्रोल करना पड़ रहा है, वरना इस मुल्क की बासी होने के नाते मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब मैं ये देखती हूँ कि किस तरह के हालात हैं हमारे आम आदमी के क्या, आप वो लोग जो पहले अपने आप को बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी कहलाया करते थे, आज उनके साथ भी इतनी तकलीफ़ है, इतनी मुश्किल से पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं, इतनी मुश्किल से इंटरनेशनल मार्केट में जाके कंपटीशन करते हैं, इतनी मुश्किल से ज़िंदगी आप लोगों ने उनकी भी बनाई हुई है, प्रोफेशनल लाइफ। इसके अलावा आप देखिए, आप एक पत्थर उठाएंगे ना पाकिस्तान की सोसाइटी में, आपको 100 गम मिलेंगे, और फिर उस सोसाइटी में और फिर उस सूबे में जिसको हम मुतवस्सित सूबा कह रहे हैं, या आप दूसरे सूबों की भी बात कर लीजिए, उसमें जिस तरह की शहाना ज़िंदगी ये आम लोग गुजार रहे हैं, क्योंकि ये आम ही लोग थे। पीटीआई यही कहती थी कि हमने आम आदमी को मौका दिया है और हम आम लोगों को चुन कर लाए हैं, क्योंकि उनको भूख नहीं होगी, उनको शौक़ नहीं होगा इस ऐशो इशरत का, और वो डिलीवर करेंगे, वो आवाम के लिए काम करेंगे। लेकिन उन बज़ाहिर उन्होंने यही बताया है कि सीट किसी को भी मिल जाए, शायद सीट में ही कोई खोट है, क्योंकि उन पे रंग तो पुराने वालों का ही चढ़ गया, या उनसे भी ज़्यादा बुरे हालात उनके हो गए। ये तमाम वो ख़र्चे हैं जिसको बार बार भी मैं पढ़ूँ तो मेरे दिल में बड़ा अफसोस होगा। ये हालात हैं और ये वाक़यात हैं। मुझे पढ़ते हुए बहुत तकलीफ़ हुई। आप में से बहुत से लोग शायद ऐसे हों जिन्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो, मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ हो, क्योंकि हमारे हालात, हमारे मुल्क के हालात, इंटरनेशनली हम कहाँ खड़े हैं, हमारी स्टेबिलिटी कहाँ है, और हम कितना पैसा उड़ा रहे हैं। तो IMF से कर्ज़ा नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे? किस तरह का बजट हम तश्कील दे रहे हैं? वज़ीर आज़म साहब, आपने अपनी टीम बनाई, 22 साल आपकी जद्दोजहद रही। क्या 22 साल में आप सिर्फ सड़कों पर नारे लगाते रहे, या कहीं बैठकर आपने कोई टीम बनाई, कोई प्लान बनाया? आपको ये लगता था कि जी फला फला मेरी टीम का हिस्सा होगा तो हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी? खुशहाली की शुरुआत तो कर देते आप, एक बीज तो बो देते, कोई एक लाइब्रेरी तो बना देते। लाइब्रेरी नहीं, कोई गेस्ट हाउस कहा गया जी हमने एक वो वर्ल्ड क्लास गेस्ट हाउस बनाना था क्योंकि वहाँ से जनरेट होंगे फंड्स। कहाँ फंड्स जनरेट हो रहे हैं? आम आवाम पिस पिस के अपने फंड्स जनरेट कर रही है आपके लिए कि आप इसी तरह उड़ाएं, अपने तोहफे तहफ़ में आप गैर मुल्की सफ़र करें, आप न जाने क्या क्या करें, और आवाम जो है वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे आती जाए, मरती जाए, अपनी जान लेती जाए। ये है आज का पाकिस्तान, और ये है तब्दीली, और तब्दीली के बाद नया पाकिस्तान। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।